Students, we are revising third chapter, class 12 physics, chapter 3, current electricity, revision. This current electricity we are revising in concise form and try to understand. Okay, first this is see the current carriers. This you are getting current carriers. Who will carry the current? कहाँ carry करेगा? Solids, liquids and gas. कहाँ कहाँ करंट कैरी होगा? करंट कैन फ्लो इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. The solids also you are saying current carriers. Current carriers means carriers of the current. Who carry the currents? So this you are solids you can say conductors, metals, insulators, bad conductors and semiconductors. Second, semiconductors mainly elemental semiconductor, silicon and germanium. This you will study last chapter. Okay, in revise. This is very important. 5 marks. This chapter. Or here conductors. As you know, current carriers. The electron carry the currents. Electrons are not current, but electron carry the current. Electron constitute current. Electron make the flow of current. So conductors, metals, and all the metals, copper, aluminum, zinc, silver, all the metals are conductors. Tungsten. So then these metals, inside the metals, means metals are the conductors in which way current is flowing. Means electrons are flowing. In the metals, conductivity, resistivity is very low, but conductivity is very high. You can say sigma, this is small sigma, conductivity, rho. The rho is inversely proportional to the conductivity. The metals का क्या होता है? Resistivity low है, conductivity high है. So all the metals are conductors. Metals are the substance through which electricity can flow. Are known as metals or conductors. Electricity can flow means flow of charge, flow of electrons. Conductors have free electrons. These free electrons are moving. They form electricity, flow of currents. And electric current you have read, I is equal to Q by T, rate of flow of charge. Then now insulators and bad conductors. This you are saying plastic. Okay, this is insulator. Cloth you are saying this is insulator, bad conductor. The substance through which electricity does not flow. इसका कंडक्टिविटी क्या है? वेरी लो है. वेरी लो मीन्स जीरो कंडक्टिविटी. रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई. जीरो कंडक्टिविटी हो गए तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. ड्यू टू दिस current is not flowing, means there are no free electrons in an insulator. So there are no free electrons, so there is no flow of current. There are no current carriers in the insulators, bad conductors. So current is not flowing. Semiconductor, conductor, you know, okay, conductor substance through which electricity flow. Semi, partially, lightly. तो ये कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर क्या है? पार्शली कंडक्टर है और current can flow. At low temperature semiconductor act as a insulators. और कुछ high temperature पे क्या होगा? Semiconductor will act as a conductor. The semiconductor partially conductor. So silicon germanium क्या है? Elemental semiconductor है. And nowadays semiconductor, silicon germanium, this is very important. Okay, in electronic devices there are so many electronic devices, they are made up of सेमीकंडक्टर्स. तो अब ये सेमीकंडक्टर्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और ये होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ आर द कैरियर्स ऑफ करंट. किसमें? इन सेमीकंडक्टर. और इसमें कंडक्टर्स में क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट. ओनली इलेक्ट्रॉन कैरी द करंट. सेमीकंडक्टर में क्या है? ये आई करंट है और आई ई और आई एच. आई ई क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन करंट. आई एच क्या है? होल करंट. बोथ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट constitute total current. The total current flowing in the semiconductor is sum of electron current and
whole current. Now लिक्विड्स पढ़ा है, कोई केमिकल्स हैं, ये कॉपर सल्फेट कह सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हो, और ये हमारा HCl है. दीज आर द लिक्विड, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. जब इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो करेगा तो दिस विल बी डिसोसिएटेड, दिस विल बी ब्रोकन इनटू आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. So then these ions, positive ions or and negative ions, these positive ions, negative ions in liquids are the carriers of current. They carry the current in liquids, not pure water. Salty water or impure water, or the impure water is a conductor, or impure water is conductor, pure water is not conductor. So अब गैस है, गैस क्या होगा? लो प्रेशर, हाई पोटेंशियल, गैस इज आयोनाइज्ड. ट्यूब वगैरह देखा हो गया, ट्यूब जो लाइट ग्लो करता है, ट्यूब में क्या है? लो प्रेशर है और हाई पोटेंशियल है. अब इनसाइड जो ट्यूब है, देन दिस गैस विल बी आयोनाइज्ड. ओके, गैस विल बी आयोनाइज्ड मींस गैस विल बी चार्ज्ड. द चार्ज particles constitute the electric current. So these things you have read. Electricity can flow, charge can flow, current can flow through solids, liquids and gases. Now electric current you can represent by capital I और small I. ये हमारा कंडक्टर है, जिस कंडक्टर is connected with a cell और बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये कंडक्टर है और इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस यू आर गेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव टर्मिनल है. इधर से करंट जो है कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. एक्चुअली क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन. अब क्या होगा? इधर निगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव. तो क्या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो दोनों के बीच क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगा. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेलिंग फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? मूव करेगा. कहां से? फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये भी इलेक्ट्रॉन है, इधर मूव करेगा. ये जो मूव करेगा विथ वेलोसिटी, ठीक है, विथ वेलोसिटी मूव करेगा, डीवी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मूव करेगा इधर से इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो I इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय T, और Q के प्लेस पर पढ़ा है क्या? Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Ne. So in this place you can write Ne, N number of electrons, E charge on electron, T time. This you can consider. ओके, और ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया? ये I एम्पियर, और ये चार्ज 1 कूलम 1 सेकेंड. हाउ यू डिफाइन 1 कूलम चार्ज? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. एम्पियर you can define. Okay, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. या 1 कूलम चार्ज कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम if 1 ampere current flows through a conductor in 1 second. इस तरह से एम्पियर डिफाइन कर सकते हो. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और SI यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम यू कैन डिफाइन इस तरह से. अब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? एवरेज. और यहाँ क्या देखा? कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इज कंडीशनल. ट्रेडिशनल मींस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. अब ये क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा इन ए कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड in opposite direction of electric field is known as drift velocity. How do you derive expression for drift velocity? अब यहां से देखो, ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये मूव करेगा कहां? इन इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो यू हैव रेड E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज. अब फोर्स है गया, चार्ज यहाँ क्या है? ये हमारा
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव चार्ज क्यू के प्लेस पे माइनस ई, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई. सो ऑन दिस इलेक्ट्रॉन हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग, एफ इज इक्वल टू माइनस ई ई, दिस फोर्स इज एक्टिंग. Okay, or from second law of motion you have read F is equal to ma, a is equal to F by m. So this charge is moving, electron is moving in electric field. So on electron acceleration produced in electron a is equal to force by m. Force के place पे लिख सकते हो minus e by m. और this formula you have read v is equal to u plus at, v is equal to u plus at. v के प्लेस पे क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है. जब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर देयर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जीरो. और ये ए एक्सेलरेशन है, यहां से एक्सेलरेशन लिख सकते हो माइनस ई बाय एम. और ये टाइम जो है एवरेज टाइम, टाइम क्या टाउ के टाइम के प्लेस में क्या लिखा टाउ, एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से Vd इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m, या स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं Vd इक्वल टू ई टाउ बाय m. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल भी होता है. ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ होल कहाँ लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे. तो यहाँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी. ठीक है, अब यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो ई टाउ बाय एम. तो ये ई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ई टाउ बाय एम. सो दिस यू आर गेटिंग रिलेशन फॉर मोबिलिटी एंड ई टाउ बाय एम के फॉर्म. नाउ दिस रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या रिलेशन है, I is equal to n e a v d. n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, e क्या हो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर v d. अब v d के प्लेस पर दिस वैल्यू यू कैन पुट, तो क्या होगा n e a और v d के प्लेस पे e टाउ बाय m. सो यू आर गेटिंग n e स्क्वायर a e और टाउ बाय m. दिस इज द एक्सप्रेशन. ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. दिस इज नॉट फंडामेंटल लॉ, मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. if remove proportional sign को हटा करके क्या लिखोगे, एक r लिखोगे. r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is known as resistance. This is the property of a conductor. So this you are getting R is equal to क्या होगा V by I. This you are getting how will you define the resistance of a conductor? Resistance of a conductor may be defined as the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through it. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. या दूसरे ढंग से देखो, ये हमारा कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसमें, थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल. जब इलेक्ट्रॉन रन करेगा थ्रू द कंडक्टर तो वो क्या करेगा, पार्टिकल मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, टकराएगा क्या होगा, फ्रिक्शन से थ्रू टकराएगा, तो उसको अपोजिशन ऑफर्ड करना पड़ेगा. यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, परेशानी होगी, अपोजिशन करना पड़ेगा. तो व्हाट इज दैट रेसिस्टेंस. So what is resistance? Resistance is the property of a conductor which opposes the flow of electrons, which opposes the flow of current. अब SI यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, ओम है, और पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट, करंट का 1 एम्पियर. हाउ विल यू डिफाइन रेसिस्टेंस का यूनिट 1 ओम. हाउ विल यू डिफाइन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 ampere current flows through a conductor if potential difference across conductor is 1 volt. और स्मॉलर यूनिट देखो करंट का 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 एम्पियर, 1 माइक्रो 1 म्यू ए और 1 पीए माइक्रो एम्पियर और
1 picoampere is equal to 10 to the minus 12 ampere. This relation you will remember, it will help. Okay, now this Ohm's law, if you plot graph between potential difference and current, graph will be straight line. This straight line shows V is directly proportional to I, और this slope gives the resistance. ये slope the VI के, ये जो slope है, ये this slope will give resistance. अगर हमारे पास दो कंडक्टर है, इधर V ले लिया, इधर I ले लिया, दो कंडक्टर है A और B, A का रेसिस्टेंस RA, this slope is giving resistance, और B कंडक्टर का रेसिस्टेंस RB है. तो which is more, RA और RB, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो दिस स्लोप जो है, ये ऑन द स्लोप वी आर टेकिंग हियर, दो पॉइंट ले लिया यहां से, ठीक है, इधर हो गया ये, इसके लिए V1 और I1, इसके लिए V2 और ये I1. तो नाउ फॉर रेसिस्टेंस, V इक्वल टू क्या पढ़ा है, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V बाय R, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर RA. तो देन V बाय I, तो V क्या ले लिया यहां से हमने, ये V कंसीडर किया, V1, I क्या हो गया, ये I1. अब इस A कंडक्टर का रेसिस्टेंस इतना हो गया. अब B कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या, RB, RB इक्वल टू V बाय I. तो V क्या लिया हमने, यहाँ V2 लिया, और I क्या लिया, I1. अब यहाँ देखो दोनों केस में, फिगर में देखो, ये I1 जो है दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों रेसिस्टेंस में डिनोमिनेटर सेम है. तो अब यहाँ पे V1 और V2 कंपेयर करते हैं. तो V1 ये है, V2, तो V2 इज मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V2 इज मोर, सो RB इज ग्रेटर देन RA. ठीक है, यानी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर B इज मोर देन A. V को हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेसिस्टेंस क्या हो गया, जो स्लोप V की ओर जितना मुड़ा रहेगा उसका रेसिस्टेंस मोर होगा. ठीक है, टेम्परेचर देखो, जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा. अगर इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, तो क्या हो जाएगा, TB इज ग्रेटर देन TA. रेसिस्टेंस जब, what are the factors on which factors resistance of a conductor depends. रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो रेसिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना लेंथ बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर. इनवर्सली जितना मोटर थिक होगा वायर, उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा. तो क्या होगा, दो फैक्टर देख लो, लेंथ पर डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और डिफरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा. कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सब डिफरेंट मटेरियल है, दे ऑल हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस. और क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो मेटल्स का रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो देयर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी आल्सो विल डिक्रीज. यानी ये 4 फैक्टर्स देखा, ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड्स. नाउ R डायरेक्टली, इसको दोनों को कंबाइन कर दिया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और A. प्रोपोर्शनल साइन कटाता है, रो लिखेंगे. रो क्या हुआ, स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी. अब इसका कैसे डिफाइन करोगे रेसिस्टिविटी, और फर्स्ट यूनिट यू कैन सी, यूनिट क्या हो गया, रो इज इक्वल टू RA by L. RA by L, रो R के लिए यूनिट क्या, ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए ये मीट कैंसिल हो जाएगा, ये ओम मीटर. रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे. ये R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L by A. हाउ यू डिफाइन रेसिस्टिविटी, समटाइम्स इट इज आस्क्ड, इफ L is equal to 1 मीटर और A is equal to 1 मीटर स्क्वायर, देन अब यहां पुट कर देते हैं, रो क्या होगा, 1 तो देन दिस रो इज इक्वल टू R. हाउ यू डिफाइन, ये रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section of the conductor. In this way you can define. Resistivity also depends on temperature.
Okay, temperature will rise, then resistivity also will rise. Next class I will try to finish this revision of this chapter. Now video is going to be longer. Okay, thank you very much for watching. Thanks, share, like and also subscribe. Thank you very much.